Okay. So if I ask you to draw the structure of S8, wait a minute. Okay. So if I ask you to draw the structure of S8 molecules, okay, let's practice this structure, electron dot structures of carbon dioxide, okay, like CO2, S8, sulfur S8 molecules, okay, and like hydrogen gas, like N2 gas, and other structures. Okay, let's try. सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ हाइड्रोजन के स्ट्रक्चर की, हाइड्रोजन गैस, तो you know that hydrogen is going to have one electrons and another hydrogen atom is also going to have one electrons. So they are forming a covalent bond in which hydrogens, this and this electrons will be going to participate in the bonding. So they will be participating here in the bonding. Okay, and here we will have this hydrogen atom and this hydrogen atoms. Okay, so you know that every hydrogen atoms wants to be the nearest noble gas of helium. हीलियम की नियरेस्ट नोबल गैस चाहिए, यानी हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम हो सकते हैं, तो इनके पास हाइड्रोजन के पास हाइड्रोजन इज एन एटम्स व्हिच इज गोइंग टू हैव ओनली 1 इलेक्ट्रॉन्स. ये न्यूक्लियस है और ये इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो चाहता है कि मैं हीलियम जैसा 2 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में आ जाए मेरे, तो इसलिए वो 1 दूसरे हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करता है एक एक इलेक्ट्रॉन्स की. इस तरह से उसके भी ऑर्बिट में 2 हो जाते हैं, दोनों के ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं. समझ आया? यस सर. Okay, in the similar way, if I'm going to draw the structures of, okay, if I'm going to draw the structure of N2, so you know that nitrogen is going to have electronic configuration 2,5. Okay, 2,5. So we can have N, and here we have 2,5. Only the electrons present in outermost shell participate in bonding, participate in bonding. सिर्फ आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं बेटा बॉन्डिंग में, और दूसरे इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते. सो यू नो दैट इफ एन एलिमेंट इज गोइंग टू हैव 5 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं. सो इफ इट इज गोइंग टू हैव 5 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल्स, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल इट रिक्वायर टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट? 3 na? Okay, so if it required 3 electrons, then what will happen here? This is nitrogen and this one is another nitrogen atom. They will start sharing with 3 electrons. So if I'm making this 3 electrons, यहाँ पर 5 हर एक नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स मैंने बना दिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. Now okay, so if I'm saying here now, it is, I'm writing like this. So here these electrons are participating in the bonding, so these are the participating electrons. Okay, 3 3, and here these are forming the octet. यहाँ पर 8 पूरे हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इस तरह से यहाँ पर भी आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएंगे. तो दिस विल द स्ट्रक्चर ऑफ N2. गॉट इट? गॉट इट? Understood? Yes sir. Okay, now moving to the next part is, for example, if you are going to draw the structure of O2, so मुझे बना के बताइए इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2,6, और किस तरह से इसका स्ट्रक्चर्स बनेगा? They will share 2 electrons. Yeah, they will share 2 electrons. Yes, they will share 2 electrons.
Okay, so is it like this? You have to make the two participating electron here, because it needs only other electrons you can make here 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. Okay, so 6 is everywhere. Okay, now you can make this one. Okay, by using this, these are the participating electrons that are participating, and these are the, इस तरह से आपके ऑक्टेट पूरे हो जाएंगे. Okay, got it? Got it, sir. Okay. Now moving to the next is, just try the structure of S8 molecule, S8 molecules. So we have we have 8 electrons of sulfur. So now how can we put them? We have a W-like structure of sulfur, like this sulfur. You can make this sulfur structure by using different types of structures. You can make it octagon structures में भी आप बना सकते हैं. For example, आपको अगर बनाना है तो आप एक सल्फर यहाँ पुट कीजिए, एक सल्फर यहाँ पर, फिर 1, फिर मेक ये इसके जस्ट नीचे एक और फिर इन दोनों के नीचे जस्ट एक यहाँ पर, और फिर इसके नीचे जस्ट यहाँ पर एक. इस तरह से यू हैव 8 सल्फर्स. तो पार्टिसिपेटिंग सल्फर्स के इलेक्ट्रॉन्स आप यहाँ रख दीजिए, क्योंकि सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 286. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सल्फर इज 286. Okay, 286, and we have here the other 286 are the electrons in this sulfur, and you knows very well कि अब इसको सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे, तो ये मैक्सिमम एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग यहाँ से कर लेगा और एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग यहाँ से. इसी तरह से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स. तो वी आर राइटिंग लाइक दिस वे for each, and here and here. And now the remaining electrons, 4 electrons means 6. We have put 2 electrons here for the sharing, and the remaining electrons 1 2 3 4. Now the 6 of this sulfur is completed. Now the 6 of electrons of this sulfur is completed. So likewise we are going to put it here. Okay, okay, now what we need to do here is we need to make this. Okay, this sulfur is making bond with this one. Okay, and this one also. Okay, so we can say that this sulfur is participating here, and this sulfur is also participating here. In the similar way, this sulfur is participating here, and this sulfur is participating here. Okay, this sulfur is participating here, and this one is participating here. This one is participating here, making bond, and this one is participating here. Okay, now the octet of these can be shown by using different color. Like I'm using the green color for the representation. So 1 2 3 4 5 6. So this sulfur is participating with this one, so you can take this one. The octet of this sulfur is completed. 1 electron from this sulfur and 1 electron from this sulfur. So they are bringing 1 electron. So you can write it like this way. This one is completed. Now this one is completed here. Now this one is completing its, this sulfur is completing its electrons with this one. With this one, this sulfur is completing its electrons with, sorry, this sulfur has done. Now this sulfur, ये वाला sulfur इससे और इससे कर रहा है, तो यहाँ पर ऐसे आप करेंगे. ये वाला सल्फर इस वाले से और इस वाले से कर रहा है, तो आप यहाँ से ऐसे करेंगे. ओके, यू हैव टू डू लाइक दिस वे. और फिर ये वाला सल्फर हमने कर लिया. अब ये वाला सल्फर इस वाले से और इस वाले से कर रहा है, तो लोग ऐसे करेंगे ऑक्टेट पूरा. और नाउ ये सल्फर, ये वाला सल्फर इस वाले से और इस वाले से कर रहा है, तो हम लोग ऐसे करेंगे. दिस इज द S8 मॉलिक्यूल्स. ये S8 मॉलिक्यूल होगा. ओके,
गॉट इट? Yes, sir. हर एक सल्फर के 8 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं पूरे, आप गिनेंगे तो देखिए, देखिए यहाँ पर 1, इस वाले सल्फर की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इस वाले सल्फर की बात करें तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से सभी के 8 हो जाएंगे। समझ आया? प्लीज ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर। डन? Done, sir. Okay, now moving to the next is some important structures used to come in examination, so that's why one of them is sulfur acid. अगर आपको दिक्कत हो रही है तो उसमें आप पास पास भी बना सकते हैं शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। एक स्ट्रक्चर इसका डब्ल्यू स्ट्रक्चर्स भी होता है, जो कि डब्ल्यू की फॉर्म में होता है, और वो कैसे होता है, उसमें कुछ इस तरह से सल्फर्स आपको रखने होते हैं। मतलब एक्चुअल में सल्फर एसिड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, लाइक दिस, ऐसे कुछ इस तरह से डब्ल्यू की फॉर्म में होता है। ओके, तो अभी हमें यहाँ 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 सल्फर को रखना होगा, so you can put it like this way, one sulfur is here, okay, another sulfur is here, and then put the next one here, and the other one here, and one here, and one here. So 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके, कुछ इस तरह से होता है। सो यहाँ से ये वाला स्ट्रक्चर भी आप बना सकते हैं, लेकिन आसान वही है तो वही बना देना, कोई इशू नहीं है, तो किसी भी तरह आप बना सकते हैं, आपकी चॉइस है। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट इज, हमारे पास अलग अलग तरह से स्ट्रक्चर्स होते हैं और हम लोग को अलग अलग तरह से इनको बनाना होता है। ओके, नाउ यू गॉट इट, कोवेलेंट कंपाउंड्स। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट इज the organic compounds. What are organic compounds? Organic compounds are those compounds, if I'm talking about the organic compounds, अभी हम लोगों ने कार्बन में कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ा है और कार्बन की स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा है कि कार्बन किस तरह के कंपाउंड्स बनाता है। ओके, मतलब कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स क्यों बनाता है, दूसरे अदर एलिमेंट्स क्यों नहीं बना पाते, उसके लिए मैंने आपको बताया कि टेट्रावेलेंट होता है, इसके 4 वैलेंसीज होती हैं, शॉर्ट साइज होता है, स्मॉलर साइज होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा होती है, और आपका शील्डिंग इफेक्ट पुअर होता है, तो इसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा होता है। तो काफी सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स बनाने की एबिलिटी रखता है। लेकिन अब सवाल ये है कि अब हम लोग को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है, क्योंकि हम लोग को कार्बोनेट्स कंपाउंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो कार्बोनेट्स कंपाउंड चैप्टर जनरली वी कैन से दैट कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड से डील करता है। तो हम लोग को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में जानना होगा पहले कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। समझ आया? समझ आया आपको? Yes, sir. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, चलिए हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ओके, उससे पहले एक और टॉपिक मैं पढ़ा दूं क्या? चलो अभी हम लोग कार्बन की फॉर्म्स के बारे में पढ़ते हैं, जरा ध्यान से समझना बेटा। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, कार्बन की एलोट्रॉप्स क्या होती है और एलोट्रॉपी के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ध्यान से समझना। व्हाट इज एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन? नेक्स्ट वन इज एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, कार्बन की एलोट्रॉप्स। अब एलोट्रॉप्स क्या होती हैं, पहले तो हम लोग उसी को जानते हैं कि एलोट्रॉप्स क्या होती हैं। देखो नेचर में, इन नेचर्स
डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में एक एलिमेंट्स अगर एग्जिस्ट करता है, यानी डिफरेंस, या हम बोलेंगे कि कई बार ऐसा होता है, मेनी ऑफ टाइम इट्स हैपेंस दैट अ सेम एलिमेंट इज एग्जिस्टिंग इन नेचर इन डिफरेंट फॉर्म्स, मतलब अर्थ क्रस्ट में डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और उसकी डिफरेंट फॉर्म्स किस वजह से होती हैं? अरेंजमेंट्स की वजह से, यानी एटम्स के अरेंजमेंट्स होने की वजह से। डिफरेंट अरेंजमेंट्स होंगे तो वो डिफरेंट तरह के कंपाउंड्स, मैं सिंपल बोलूं तो वो डिफरेंट तरह के प्रॉपर्टीज को शो करता है, यानी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज को शो करता है। उसी को हम लोग बोलते हैं एलोट्रॉप्स। तो एलोट्रॉपी एक फेनोमेना है जिसमें एग्जिस्टेंस होता है डिफरेंट तरह की, एक ही एलिमेंट का डिफरेंट तरह से अर्थ क्रस्ट में, उसी को हम लोग एलोट्रॉप्स बोलते हैं। सो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर डेफिनेशंस में, व्हाट इज एलोट्रॉप्स। सो द प्रॉपर्टी, द फेनोमेना ऑफ एग्जिस्टेंस, द फेनोमेना ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ मेटल्स, सॉरी मेटल्स नहीं, एलिमेंट्स, कोई भी एलिमेंट हो सकता है वो, ठीक है, ध्यान से समझना बेटा। द फिनोमेना ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट्स इन नेचर में, अब एक एलिमेंट अगर नेचर में डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, फिनोमेना ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट्स इन नेचर इन डिफरेंट फॉर्म्स in nature due to different arrangement of atoms के different arrangements की वजह से। The phenomena of existence of elements in different forms in nature due to different arrangements of atoms का different arrangement होने की वजह से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एलोट्रॉपी बोलते हैं, ठीक है, is called एलोट्रॉपी। is called एलोट्रॉपी। हम लोग एलोट्रॉपी बोलते हैं। एंड सच फॉर्म्स आर कॉल्ड एलोट्रॉप्स। इसकी फॉर्म्स को हम लोग एलोट्रॉप्स बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं कि कार्बन हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, कार्बन हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कार्बन की जो एग्जिस्ट असली फॉर्म होती है वो ग्रेफाइट होती है, ठीक है, यानी कार्बन नेचर में अगर एग्जिस्ट करता है तो उसकी जो नेचुरल फॉर्म्स हम मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, वो ग्रेफाइट होती है, ठीक है। लेकिन कार्बन डायमंड की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है और कार्बन कोल की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, कार्बन अलग अलग तरह से फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो कार्बन के हमारे पास डिफरेंट तरह की फॉर्म्स होती हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं डायमंड्स की, सो डायमंड्स की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, सो इफ आई एम सेइंग कि डायमंड्स में क्या होता है कि हर एक कार्बन 4 अदर कार्बन से बॉन्डेड रहता है, यानी इन डायमंड्स ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड विद 4 अदर कार्बन एटम्स, ठीक है, इन अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ट्राइपॉड जैसा होता है ना, वैसे स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है। यानी कि मैं अगर एक कार्बन को यहाँ बना दूं और इस तरह से मैं उसको रिप्रेजेंट करूं, सो एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी रखता है, तो उसमें एक यहाँ पर आएगा और दूसरा आपका ओके, कुछ इस तरह से बॉन्ड बनाते हैं। कार्बन मेक बॉन्ड लाइक दिस वे, जिसको हम लोग टेट्राहेड्रल बॉन्ड बोलते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स जो होता है कार्बन में, हर एक कार्बन इस तरह से जुड़ा रहेगा। यहाँ पर एक कार्बन होगा, यहाँ पर भी एक कार्बन होगा, ये भी एक कार्बन होगा, यहाँ पर भी एक कार्बन होगा। ये कार्बन फर्दर फर्दर 3 अदर कार्बन से बॉन्ड, मतलब 4 अदर कार्बन से बॉन्ड बनाएगा। ये अलग इस तरह से, इस तरह से, ओके, और यहाँ पर ये वाला भी इस तरह से, हर एक कार्बन 4 अदर कार्बन से बॉन्ड बना रहा होता है, ओके। सो हम बोलेंगे इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बोलते हैं। वी कॉल्ड सच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर लाइक द टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसमें एक प्लेन से बाहर होगा ये कुछ इस तरह से, और एक हमारे पास ट्राइपॉड की तरह स्ट्रक्चर हम लोग मान रहे हैं। इस स्ट्रक्चर की खास बात क्या होती है कि इस स्ट्रक्चर्स में हमारे पास
जो बॉन्ड स्ट्रक्चर्स होता है, मतलब कि अगर मैं बोलूँ तो सब में बॉन्ड लेंथ बराबर होती है, मतलब ईच एंड एवरी वन इज गोइंग टू हैव द सेम बॉन्ड लेंथ, ठीक है। यानी कि एक्चुअल में अगर मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूं कि अगर मेरे को चार शेप वाला बनाना है, यानी कि अगर मैं एक्सप्लेन करता हूं कि मेरे को डायमंड क्यों उतना हार्ड होता है, इफ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू दिस वन, कि अगर मैं आपके पास एक कार्बन को चार बॉन्ड बनाने, तो आप ऐसे भी ज्योमेट्री समझ सकते हैं कि एक कार्बन यहाँ हो जाए, एक कार्बन यहाँ हो जाए, एक कार्बन यहाँ हो जाए और एक कार्बन यहाँ हो जाए, इस तरह से। यानी कि कार्बन को एक स्क्वायर शेप में मान लीजिए ऐसे, ठीक है, और इस तरह से कंसीडर कर लीजिए कि कार्बन ऐसे है कुछ, ठीक है, तो यहाँ पर एक कार्बन बीच में रखा हुआ है, और यहाँ 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 और यहाँ, यहाँ एक कार्बन है, यहाँ एक कार्बन है, यहाँ एक कार्बन है, यहाँ एक कार्बन है, ठीक है। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आप देखेंगे कि अगर मैंने सपोज कीजिए कि इस डायरेक्शन से फोर्स लगाई है कार्बन पर, लेट आई एम जस्ट अप्लाइंग द फोर्स इन दिस डायरेक्शन, तो मैक्सिमम फोर्स सिर्फ इस कार्बन पर लगेगी। और अगर मैंने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाई है तो मैक्सिमम फोर्स इस कार्बन पर लगेगी, ठीक है। और अगर मैंने सपोज कीजिए इस डायरेक्शन पे फोर्स लगाई, इस डायरेक्शन से फोर्स लगाई है, तो मैक्सिमम फोर्स इस कार्बन पर और इस कार्बन पर लगेगी, यानी यहाँ और यहाँ लगेगी, इन दो कार्बन पर नहीं लगेगी, यानी कि इन बाकी ये कार्बन पर नहीं लगेगी, इस पर और इस पर नहीं लगेगी, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि इसमें इक्वल फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। फोर्स अगर इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, तो मैक्सिमम इस पर लगेगी, मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। फिर बॉन्ड एंगल भी सेम नहीं है, बॉन्ड एंगल मतलब बोले तो यहाँ ये वाला एंगल जो है दैट इज 90 डिग्री, और अगर मैं ये वाले एंगल की बात करता हूँ, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एंगल, तो दिस इज 180 डिग्री। तो बेटा एक में हमारे पास 90 डिग्री मिला, एक में 180 डिग्री मिला, तो यहाँ पर इक्वल फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं। लेकिन टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स होता है ट्राइपॉड वाला स्ट्रक्चर्स, ट्राइपॉड वाला स्ट्रक्चर्स अगर मैं आपको बना करके दिखाऊं, तो एक मिनट रुकिए, मैं आपको, मतलब होता है कुछ ट्राइपॉड वाला, जिसमें यहाँ पर एक कार्बन सेंटर में रहेगा, और ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला कार्बन सब बराबर बॉन्ड लेंथ पर है, मतलब ये वाला इसके उसके बीच में हमेशा सेम बॉन्ड एंगल होगा, दैट इज 109.5 डिग्री। यहाँ पर भी उतना ही होगा 109.5, ठीक है, 109.5 इन दोनों के बीच में, 109.5, इसी तरह से इन दोनों के बीच में भी 109.5 डिग्री, वन, ठीक है। तो इसमें भी हमारे पास 109.5 डिग्री एंगल होगा। तो सब में हमारे पास सेम सेम बॉन्ड एंगल होगा, कोई बॉन्ड एंगल डिफरेंट नहीं होगा, कोई बॉन्ड एंगल डिफरेंट नहीं, बल्कि यहाँ पर एंगल का अलग अलग है। साथ में बॉन्ड लेंथ भी बराबर है, यानी कि जो बॉन्ड लेंथ है वो हमारे पास 1.54 एंगस्ट्रॉम हमारे पास बॉन्ड लेंथ है। यानी कि अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करता हूँ, ठीक है, सो ये वाली बॉन्ड लेंथ सब, मतलब बॉन्ड लेंथ यानी ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस सब बराबर है, और सबकी बॉन्ड लेंथ जो है वो 1.54 एंगस्ट्रॉम है, मतलब सबकी बॉन्ड लेंथ भी बराबर है, जबकि यहाँ पर बॉन्ड लेंथ डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। तो इस कंडीशंस में अगर मैं बात करता हूँ कि यहाँ पर एंगल सेम होने की वजह से अगर फोर्स मैंने इस डायरेक्शन में लगाई है, तो वो सब पर बराबर डिस्ट्रीब्यूट होती है, इस पर भी, इस पर भी और इस पर भी बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगी। अगर मैंने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाई तो बाकी में तीनों में बराबर डिस्ट्रीब्यूट होती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्स इज इक्वल, सो दैट्स व्हाई डायमंड इज स्ट्रक्चरली सो, इतना अच्छे से डिजाइन किया गया है कि उसके अंदर इक्वल फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और इक्वल फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि डायमंड इज नेचुरली हार्ड अकरिंग सब्सटेंस, डायमंड एक हार्ड नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस माना जाता है। समझ आया बेटा? यू गॉट इट? समझ आया? Yes, sir. ओके, सो व्हाई डायमंड इज हार्ड? तो उसका सिंपल सा जवाब है बिकॉज इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड विद फोर अदर कार्बन्स इन अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ये कैसा स्ट्रक्चर है? दिस इज अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, दिस इज टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर है ये बेटा, टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर। और जब टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर्स होता है तो उसमें इक्वल, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर की सबसे अच्छी बेनिफिट यही है कि उसके अंदर सब बराबर से जुड़े होते हैं, मतलब सब में बॉन्ड एंगल सेम होता है। जैसे मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ इमेज से, एक मिनट रुकिए, मैं एक मिनट में दिखाता हूँ ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कैसा होता है।
सो दिस इज द टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ये है आपका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। कुछ इस तरह का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है, इसमें सब में बॉन्ड लेंथ बराबर होती है। यानी कि अगर मैं बोलूँ तो यहाँ से यहाँ तक का बॉन्ड लेंथ, सॉरी बॉन्ड एंगल, ये वाला बॉन्ड एंगल, यहाँ से यहाँ का बॉन्ड एंगल, पीछे वाले से इस वाले, एवरी बॉन्ड एंगल इज गोइंग टू हैव द सेम बॉन्ड लेंथ, और बॉन्ड एंगल भी सेम होता है। तो फोर्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी मैंने इस एंगल में फोर्स लगाई तो वो इन तीनों पर बराबर पड़ेगी, अगर मैंने इस एंगल से फोर्स लगाई तो बाकी के तीन पर बराबर पड़ती है। तो इस तरह से टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जो होता है उसकी वजह से हम बोलते हैं कि डायमंड जो होता है वो एक स्टेबल स्ट्रक्चर में रहता है, और उसकी वजह से एक बहुत अच्छी बॉन्ड बनती है डायमंड्स में। समझ आया? मतलब डायमंड रिजिड क्यों होता है वो इसी वजह से होता है। समझ आया? Yes, sir. तो डायमंड इज एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। तो मैं यहाँ पर एक नोट लिखता हूँ कि इन डायमंड, देखो थोड़ा सा इसके बारे में, डायमंड इज इन डायमंड each carbon atom is bounded with 4 other carbon atom in a tetrahedral structure, in a tetrahedral structure. बेटा किसमें स्ट्रक्चर में? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड विद 4 अदर कार्बन एटम्स इन अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। और उस टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर की वजह से हम बोल सकते हैं कि डायमंड जो होता है वो रिजिड होता है, मतलब हार्ड होता है। ठीक है? क्यों होता है? क्योंकि टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है कि उसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो हम बोलेंगे सिंस इन टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर the bond all the bond angles, that is 109.5 degree, and bond length are equal, so the force is equally distributed amongst all the atoms, which make diamond naturally occurring hard substance। समझ आया? नेचुरली occurring हार्ड सब्सटेंस बना देता है। समझ आया कि डायमंड इतना हार्ड क्यों होता है? डायमंड एक एलोट्रॉप है कार्बन की, जो कि जिसमें कार्बन कार्बन एटम्स। तो अभी हम लोग एलोट्रॉप्स की बात कर रहे थे, तो एलोट्रॉप्स की अगर हम लोग बात करें फिर से, तो एलोट्रॉप्स में क्या है कि अगर हमें कार्बन एटम, जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं, कार्बन एटम्स हम लोग के पास है, अब उसमें हम लोग को अलग अलग स्ट्रक्चर्स में कार्बन एटम्स मिलता है, और उसकी वजह से उसकी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज हो जाती है। जैसे ग्रेफाइट की बात करते हैं अभी हम लोग, ठीक है? ग्रेफाइट में हर एक कार्बन एटम 3 अदर कार्बन एटम से बॉन्डेड रहता है। चलो पहले ये लिख लिया आप लोगों ने, नोट इट डाउन। लिख लिया बेटा? पूछ रहा हूँ कुछ। सही है। हैव यू नोट इट डाउन? Yes, sir. मुझे आवाज नहीं आ रही। Hello. करके नहीं है? लिखा आपने? Yes, sir. Okay, now moving further, if I'm saying that in graphite, अगर ग्रेफाइट की बात करते हैं तो ग्रेफाइट में हमारे पास एक कार्बन एटम 3 अदर कार्बन एटम से बॉन्डेड रहता है इन अ हेक्सागोनल अरेज। तब 3 अदर कार्बन एटम से बॉन्डेड रहेगा इन अ हेक्सागोनल अरेज।
मैं इसको थोड़ा सा और नीचे बना देता हूँ, पूरा ये कॉपी हो जाए तो। एक मिनट। सो अगर मैं इसी को एक ठीक है, कुछ इस तरह से आपको डायमंड का स्ट्रक्चर, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो ग्रेफाइट में हर एक कार्बन एटम्स जो होता है वो बॉन्डेड रहता है 3 अदर कार्बन एटम्स से। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इस वाले को स्ट्रक्चर को अगर आप ध्यान से देखते हो तो यहाँ पर आपको ये वाला कार्बन एटम्स आपको 1 2 3 यानी 3 बॉन्ड बना रहा है। इसी तरह से इस वाले कार्बन एटम्स को अगर आप देखते हो तो ये भी 1 2 3 कार्बन एटम से बॉन्ड बना रहा है। So since in graphite each carbon atom is bonded with 3 other carbon atoms, इसमें एक फ्री रहता है, एक तरह से एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है। वो फ्री क्या करता है भी लोग देखते हैं हम लोग, ठीक है। और इसमें एक लेयर ग्रेफाइट की दूसरी लेयर के ऊपर कुछ इसी तरह से फिक्स रहती है। कुछ इस तरह से one layer is placed over the another layer, ठीक है। कुछ इस तरह से एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर प्लेस्ड रहती है, ठीक है। और इसकी वजह से ग्रेफाइट जो होता है वो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स में तो अरेंज रहता ही है, और साथ में हम बात करें तो कुछ इस तरह से इस तरह से हमारा ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर्स होता है, ठीक है। तो क्योंकि ग्रेफाइट में जो कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होता है, यानी कि अगर मैं बात करता हूँ ये वाला बॉन्ड, तो ये हम लोग बोलते हैं दिस इज द कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। ये कोवेलेंट बॉन्ड होता है जो कि कार्बन की शेयरिंग से बनता है। और बल्कि जो नीचे वाला है हमारे पास, जो नीचे वाला बॉन्ड है वो ऐसे ही एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर प्लेस्ड है, उसमें कोई एक्चुअल बॉन्ड नहीं है, मतलब कोई एक्चुअल बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं हो रही है, यानी वन लेयर इज प्लेस्ड ओवर द अदर लेयर। और इसकी वजह से वो वीक वीक बॉन्ड है, और वो बॉन्ड नहीं बन रहा, मतलब ये बस एक लेयर से दूसरी लेयर चिपकी हुई है। तो हम बोल सकते हैं कि दिस इज द वीक वैन डर वाल्स फोर्स या वीक बॉन्ड। वीक, हम लोग बोलेंगे वीक वीक बॉन्ड। ये वीक बॉन्ड है, मतलब ऐसे ही एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर प्लेस्ड है, ठीक है। एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर प्लेस्ड है। सो ये वीक बॉन्ड है, और यहाँ पर हमारे पास है कोवेलेंट बॉन्ड। दिस इज कॉल्ड द कोवेलेंट बॉन्ड। यू गॉट इट? कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? ओके, सही है। आर यू देयर? सर ओके, सो हम लोग इसको बोलेंगे कि ये कोवेलेंट बॉन्ड है। अब क्या होता है कि इसी वजह से रीजन है कि ग्रेफाइट, एक दो सवाल आपसे पूछे जाते हैं कि भाई ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एक तो ये सवाल होगा। दूसरा, ग्रेफाइट का एक क्वेश्चन यहाँ पर ये भी आता है आपके साथ कि ग्रेफाइट में ऐसी क्या खास बात होती है जिसकी वजह से ग्रेफाइट स्लिपरी होता है, मतलब इट कैन स्लाइड। हम लोग इसको ड्राई लुब्रिकेंट की तरह भी इस्तेमाल करते हैं। तो क्योंकि ये वीक बॉन्ड होता है, तो एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर प्लेस्ड हुई है। सपोज कीजिए आपके पास एक बंडल्स ऑफ कॉपीज है, पेपर्स है, और वो बस एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर प्लेस्ड है। तो आप उसके ऊपर अपना ऐसे हाथ करेंगे तो वो जो पेपर्स होंगे वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर जाएंगे इजीली। और अगर वो स्लाइड कर जाएंगे इजीली तो हम बोलेंगे कि वो इजीली, मतलब तो इसी तरह से, मतलब स्लाइड कर जाएंगे तो मतलब लुब्रिकेशन की तरह काम करेंगे। तो इसी तरह से एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर बस ऐसे ही प्लेस्ड है, तो एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर इजीली स्लाइड कर जाती है। इसलिए जब हम लोग पेंसिल से लिखते हैं ग्रेफाइट की, तो उसमें एक लेयर हमारी स्लाइड करके हमारी कॉपी पे चिपक जाती है, पेस्ट हो जाती है, और दूसरी लेयर हमारी पेंसिल की लेड से ही लगी रहती है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि ग्रेफाइट से हम लोग इसीलिए लिख भी पाते हैं। तो ग्रेफाइट गुड कंडक्टर भी इलेक्ट्रिसिटी का, और ग्रेफाइट साथ में ड्राई लुब्रिकेंट की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। अब एक सवाल ये आता है कि अगर हमारे पास ये डायमंड है, ग्रेफाइट है, और ये ग्रेफाइट एक्चुअल में हम बोल रहे हैं कि ग्रेफाइट चलो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, तो फिर एक सवाल ये आएगा कि ठीक है,
गुड कंडक्टर मान लिया, तो अब आप बताइए कि कार्बन तो 4 बॉन्ड बना के स्टेबल रहता है, तो फिर ये 3 बॉन्ड बना के कैसे स्टेबल है? मतलब एक कार्बन अगर 3 बॉन्ड बना रहा है, सो वो स्टेबिलिटी कैसे आएगी? स्टेबिलिटी तो एक्वायर ही नहीं कर सकता, स्टेबिलिटी कैसे आएगी? मतलब इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बना लिए तो स्टेबल कैसे होगा? तो उस कंडीशन में, स्टेबिलिटी एक्वायर करने की कंडीशंस में, एक्चुअल में अभी मैं बताता हूं तुम्हें कि स्टेबिलिटी कैसे एक्वायर करता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे तो इसने 3 बॉन्ड बना रखे हैं, लेकिन अभी एक इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं इसका एक फ्री, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, एक इलेक्ट्रॉन इसका फ्री होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका फ्री होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका फ्री होगा, एवरीवन इज गोइंग टू हैव इट्स 1 इलेक्ट्रॉन फ्री। ओके, सो जब ये 1 इलेक्ट्रॉन सभी के फ्री होंगे तो क्या होगा? ऐसे तो 3 बॉन्ड बना के कार्बन स्टेबल नहीं रह सकता किसी भी हाल में, तो कार्बन को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा अपनी स्टेबिलिटी को एक्वायर करने के लिए। तो वो कार्बन क्या करता है? तो चलो जानने की कोशिश करते हैं क्या करता है कार्बन। तो एक्चुअल में ये अल्टरनेट डबल बॉन्ड बनाने की कोशिश करते हैं। अल्टरनेट डबल बॉन्ड मतलब जैसे सपोज कीजिए कि ये वाला कार्बन, दिस कार्बन एंड दिस कार्बन विल मेक अ बॉन्ड, डबल बॉन्ड, अ पाई बॉन्ड, जिसको हम लोग बोलते हैं डबल बॉन्ड। ठीक है, उसके बाद ये वाला इलेक्ट्रॉन बिजी हो चुका है, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी बिजी हो चुका है, तो ये इसके साथ तो बॉन्ड नहीं बनाएगा, तो अब यहाँ पर एक बॉन्ड बनेगा। फिर उसके बाद अल्टरनेट डबल बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, उसके बाद ये दोनों बना लेंगे। ठीक है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा एक तरह से, और ये इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ कंसीडर कर लेता हूँ, तो ये यहाँ पे एक बॉन्ड बना लेगा। उसके बाद यहाँ एक बॉन्ड बन जाएगा। इसके बाद ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन से फ्री हो गया, तो अभी यहाँ पर एक बॉन्ड बन जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ एक बॉन्ड बन जाएगा। फिर उसके बाद ये बिजी हो चुका है, ये बिजी हो गया, तो यहाँ पर एक बॉन्ड बन जाएगा। इस तरह से हमारे पास अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स का क्या फायदा होता है कि ये जो डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ये इनके अंदर ऐसा होता है कि थोड़ी देर बाद शिफ्ट करके ना यहाँ पर बॉन्ड आ जाएगा। मतलब after some times this bond will shift to here, this bond will shift to here, this bond will shift to here, this bond will shift here, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, ये यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, ये वाला यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, और ये वाला यहाँ शिफ्ट कर जाएगा। मतलब तो इसी को हम लोग बोलते हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। व्हाट वी कॉल्ड इट डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसको हम लोग डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली शिफ्ट कर रहे हैं। यहां से ये यहां पर आ जाएगा, यानी यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, और यहाँ सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। फिर क्या होगा? फिर यहाँ पे वापस से डबल बॉन्ड बन जाएगा, और इस तरह से हमारे पास एक चेन की तरह इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल कर रहे हैं, एक तरह से दिखता है। तो सिंस डीलोकलाइजेशन हो रहा है, इसलिए एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में, यानी एक अगर मैं इसका स्ट्रक्चर देखता हूं तो इसमें ट्रांसफर हो रहा है, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज टेकिंग प्लेस। तो इसकी वजह से हम बोलते हैं कि बिकॉज ऑफ डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वी आर एबल टू, यानी ग्रेफाइट इज एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, नहीं तो अगर हम बोलेंगे कि हर एक एटम 3 अदर कार्बन एटम्स के साथ बॉन्ड बना रहा है और एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, तो फिर फ्री है तो स्टेबिलिटी कहां से आएगी? स्टेबिलिटी का सवाल है, स्टेबिलिटी कहां से आएगी? तो उसका सवाल यही है कि इन कार्बन ईच का इन ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड विद 3 अदर कार्बन एटम्स एंड मेक अल्टरनेट डबल बॉन्ड इन ऑर्डर टू अटेन द स्टेबिलिटी। अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स बनते हैं, और अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होने की वजह से डीलोकलाइजेशन पॉसिबल है। डीलोकलाइजेशन क्या होता है कि जब अल्टरनेट डबल बॉन्ड बनते हैं कुछ इस तरह से, डबल सिंगल, तो डीलोकलाइजेशन हो जाएगा। मतलब कुछ देर बाद ये सिंगल हो जाएगा, ये डबल, ये सिंगल, और जब इस तरह से डीलोकलाइजेशन पॉसिबल होती है तो फिर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पॉसिबल, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में हो पाती है। अब जैसे हमारे पास बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग की अगर हम लोग बात करते हैं, तो बेंजीन रिंग में हमारे पास एक कार्बन एटम्स अगर हम लोग डिस्कस करें, तो क्या बेंजीन भी गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का? उसके अंदर भी डीलोकलाइजेशन होता है क्या? तो बेंजीन का भी अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें तो थोड़ी देर बाद बेंजीन कुछ इस तरह से हो जाएगा, आपको देखने को मिलेगा, यानी कि यहाँ 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 ये जो कार्बन से कुछ देर बाद यहाँ सिंगल बॉन्ड हो जाएगा जहां डबल था, और जहां डबल था वहां सिंगल, जहां सिंगल है वहां डबल हो जाएगा, यानी कुछ इस तरह से ये स्ट्रक्चर्स होते हैं बेंजीन के। तो क्या इसमें भी डीलोकलाइजेशन हो रहा है? एक्चुअली में इसमें डीलोकलाइजेशन नहीं हो रहा है, यानी इसमें तो मतलब शिफ्टिंग तो हो रही है, लेकिन एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। इस बेंजीन का ये अकेला मॉलिक्यूल है, लेकिन यहाँ पर क्या जुड़े हुए हैं, यहाँ से यहाँ पर ये कंबाइंड है, तो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, यानी एक जगह से दूसरी, यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का अगर कंडक्शन करना हो तो ये सीरीज
इस तरह से होते हुए आपकी इस वाले तक एंड तक पहुंच जाएगी। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें एक एक एटम या एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से अटैच नहीं रहता, जुड़ा हुआ नहीं रहता, इसमें अलग अलग रहता है। लेकिन इसमें ग्रेफाइट में जुड़ा हुआ रहता है, तो जिसकी वजह से एक एंड से दूसरे एंड तक डीलोकलाइजेशन पॉसिबल होता है, और डीलोकलाइजेशन होने की वजह से ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी को इजिली कंडक्ट कर पाता है। समझ आया? समझ आया? समझ आया बेटा? सैयद, आर यू देयर इन द क्लास? In graphite, each carbon atom is bounded with three other carbon atom leaving an electron free. This free electrons this free electron results in making alternate डबल बॉन्ड्स। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स बनाने में हेल्प करता है, और अगर ये हेल्प करता है तो फिर एज अ रिजल्ट delocalization of pi electrons, pi electrons कौन थे? डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड electrons is possible which make graphite good conductor of electricity, good conductor of electricity, जिसकी वजह से ग्रेफाइट गुड कंडक्टर हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी का। प्लीज कॉपी दिस वन, इसको कॉपी कीजिए फटाफट से।
डन, कॉपी बेटा। सैयद Yes, sir. कॉपी। Yes, sir. ओके, हमारी आवाज बहुत हल्की आती है बेटा, आप रेस्पॉन्स भी नहीं करते हो, क्लास में चुप रहते हो, क्या मसला है? ऐसा लग ही नहीं रहा मैं खुद को पढ़ा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है। जैसे रिजल्ट डिग्लोबलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। पाई इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं बेटा? डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग पाई इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, तो उनका डिग्लोबलाइजेशन पॉसिबल होता है, लेकिन बेंजीन में ऐसा नहीं हो पाता है। बेंजीन में इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में नहीं ट्रांसफर नहीं हो पाता, यानी इसी में अगर घूम रहा है तो उसमें क्या डिग्लोबलाइजेशन होगा? एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तभी तो करंट फ्लो करेगा। समझ आया? चलो, यही बात है कि एलोट्रॉप्स में एक और होता है हमारे पास, कार्बन C60, लेकिन उसको अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं एलोट्रॉप्स के बारे में बात करूं तो एलोट्रॉप्स की क्या खास बात होती है, एलोट्रॉप्स में और आइसोटोप्स में क्या डिफरेंस है? अगर मैं बात करता हूं एलोट्रॉप्स एंड आइसोटोप्स, आइसोटोप्स में क्या डिफरेंस है? एलोट्रॉप्स में सेम एलिमेंट होगा, सेम एलिमेंट होगा और उसका अरेंजमेंट डिफरेंट होगा। सेम एलिमेंट्स नेचर में पाया जाएगा, अकर्स इन नेचर, occurs in nature in different forms, in different forms, ठीक है, डिफरेंट फॉर्म्स। आइसोटोप्स में क्या होगा? आइसोटोप्स में मास ऐसे एलिमेंट, मतलब सेम एलिमेंट होगा, सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, या सेम एलिमेंट क्या मतलब, सेम हटा दो, एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, डिफरेंट एटॉमिक मास, उनका एटॉमिक मास डिफरेंट होगा, एटॉमिक मास। समझ आया? तो अगर हमारे पास सेम एलिमेंट का सेम एटॉमिक नंबर है और डिफरेंट मास है तो वो आइसोटोप्स होंगे। दोनों में खास बात क्या है कि इनकी भी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज, बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। लेकिन इसमें भी यही होगा, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, अब अगर मैं बात करता हूं, जैसे आपने डायमंड को जलाया या कार्बन आपने लिया, आपने डायमंड को जलाया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो वो आपको कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट ही देगा। आपने ग्रेफाइट को जलाया, ग्रेफाइट वाला कार्बन लिया, आपने उसको जलाया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो वो भी आपको कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट ही देगा, ठीक है। लेकिन एक हमारे पास, अगर हम डायमंड की बात करें तो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये बैड कंडक्टर होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो गई ना, एक गुड कंडक्टर है, एक बैड कंडक्टर है। आइसोटोप्स में भी ठीक है, ये आइसोटोप्स के लिए लिखा था मैंने, खैर सॉरी, ये मैंने जो लिखा है वो एलोट्रॉप्स के लिए लिखा है। तो डिफरेंट एलोट्रॉप्स अगर हमारे पास होंगी, तो डिफरेंट एलोट्रॉप्स भी अगर हमारे पास है तो आप उनको जलाओगे तो सेम कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब सेम मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, लेकिन डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज क्यों है? क्योंकि उनका अरेंजमेंट डिफरेंट होने की वजह से एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में है, एक आपका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में है, तो एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, एक हमारे पास है हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, तो दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर्स में होने की वजह से, अरेंजमेंट डिफरेंट होने की वजह से उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज सेम क्यों होती है? क्योंकि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है तो उसमें भी कार्बन, है तो उसमें भी कार्बन, दोनों में कार्बन अलग है, कार्बन तो सेम तरीके से ही कंबाइन रिएक्शन करेगा, तो इसलिए केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है लेकिन डिफरेंट हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। समझ आया? समझ आया? समझ आया बेटा? Yes, sir. चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस क्लास। ओके, लीव द क्लास।